Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. And I hope you all are really watching the videos that I'm making for you because a lot of effort goes into that. A lot of data is collated, and then I give you my suggestion. Like, for example, I made about Bank Nifty. I said that the stance is positive, but the option chain is negative, and it could be anything that is possible. So it was pretty much indecisive. It went down, then it came up. Like Bank Nifty showed a lot of movement. I just want to show you what exactly happened, so that you all understand by looking at the chart pattern, and then you can also mark your support and resistance and trade accordingly. So let me take you to the screen, and here is the screen right in front of you. And if you see, like we did trading with our members, and if you see where it experienced the resistance, always remember जो resistance है वो support बन जाएगा और जो support है वो resistance बन जाएगा. तो जो resistance बना था on the previous day, जो एक resistance बना था जिसको निफ्टी ने वॉल्यूम्स के साथ बैंक निफ्टी ने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था, वही इसका सपोर्ट बन गया आज. तो हमने क्या किया था, we sold कॉल ऑप्शन हियर, यहाँ पे कहीं पे कॉल ऑप्शन को सेल किया था, और जो लोग हमारे साथ लाइव थे उन्होंने पुट को बाय किया था. जब यहाँ तक मार्केट गिरा और सपोर्ट लिया, दिस इज वेयर वी बॉट, we actually covered our positions and we sold put here, and that's how we made money yesterday. So I'll just show you what I exactly did. What I'm telling you, exactly the same thing I have done. I'll show you. I first, sold the call option. See here, this is where I sold the 550 quantity of call option at about 9:37, and booked it at about what price? I booked it at about, I sold at what price? I sold it at 245 and booked the same thing at 125, almost like 120 points profit I got here. Then when it took a support, I sold PE. See here, 10.10 we sold PE here. This is 10.11, I sold PE. I sold it at 421 and covered at 324. And you can see here, this is how I got profit in this particular Bank Nifty trade. So what I'm trying to tell you here is that if you analyze and if you're in the direction of the market, you will always make money if you have done your analysis. Now, this is Bank Nifty in front of you. Now, what I want to tell you, suggest you here, that international market, if I look into the European market and the American market, they both are slightly positive. And above 42,370, I'm expecting a target of 42,500. That is a target that I'm expecting Bank Nifty to give. In case that's crossed, then 42,600, 42,700 targets can also be seen. But if Bank Nifty opens gap down and goes below 42,085, मतलब 42,085 के नीचे जाती है, तो आपको एक 41,800 के टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देंगे. लेट मी मार्केट, ये एंट्री होगी सेल की और टारगेट आएगा कम से कम यहाँ से 250 पॉइंट्स का. बाय की ये सेल की एंट्री है यहाँ पे, राइट? और बाय की एंट्री कहाँ पे इनिशिएट होगी? अगर ये 42,372 के ऊपर जाएगा, 42,370 के ऊपर आपको बाय की एंट्री मिलेगी फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट 42,500, बिकॉज 42,500 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है. बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होंगे until you see unwinding here. You will have the first target of about 130 points. मतलब अगर आप in the money कोई कॉल ऑप्शन लेते हैं तो आपको आराम से उसमें 50, 60, 70 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, सो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का स्टांस. और निफ्टी, अगर आपको याद होगा, मैंने कल बोला था कि मुझे निफ्टी ज्यादा वीक लग रही है देन बैंक निफ्टी. सो लेट मी जस्ट शो यू बैंक निफ्टी. निफ्टी ने एक मैसिव गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से लगातार after the first 1 hour, it was just continuously going up. Means there was a strength in the market. Now, so what I'm expecting in Nifty, I'm expecting अगर ये 17,700 के ऊपर जाती है तो एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा till 17,840. But before that, I just wanted to show you कि ये जो कल बैंक निफ्टी में एक रैली आई है, उस रैली का आप देखिए, इफेक्ट देखिए. जितने भी सीएसबी बैंक है, इंडियन बैंक है, आईओबी बैंक, जितने भी छोटे छोटे बैंक्स हैं, उन सब में जबरदस्त खरीदारी हुई है.
CSB Bank, Indian Bank, IOB, UCO Bank, Union Bank, South Indian Bank, Maharashtra Bank, JK Bank, Central Bank, बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक, सारे छोटे छोटे बैंक्स में जबरदस्त बाइंग आई है। तो ये एक पॉइंट था, हालांकि हेवी वेट्स नेगेटिव थे, जैसे कि एक्सिस बैंक ने या आईसीआईसीआई बैंक ने या एचडीएफसी ने या एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा मूव नहीं दिया, बट ये जो छोटे छोटे बैंक्स थे, कैन यू बिलीव इन दीज बैंक्स, कल करीब 1000 करोड़ की बाइंग आई है इन छोटे छोटे बैंक्स में। तो अगर हम इन छोटे बैंक्स की बात करें तो मुझे जो एक बैंक अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है जिसपे जबरदस्त मूव नहीं आया है, and a big move can be expected, that is South Indian Bank. Our entry will be about 16.05, मतलब 16 रुपए के थोड़ा ऊपर अगर जाता है ये स्टॉक, तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें जरूर आती हुई दिखाई देगी फॉर अ टारगेट ऑफ 17, 18, 19 also can be expected, and above 19 it will be just in the upward move for 20, 21 and 22. So this is one bank which still looks very, very promising to me. Now I'll come to the point of talking about some stocks which are on my radar. So there are 3 stocks जिनकी मैंने पूरी एनालिसिस की है और जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पहला उनमें से है स्कॉट्स कबूटा, right? Here it is. This is how Scots look. This is 1 hour टाइम फ्रेम। अगर स्कॉट्स अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, आप एक बार नोटिस कर सकते हैं कि कल इसने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न 1 आवर में कंप्लीट किया है। वन शोल्डर, दिस इज हेड, दिस इज अनदर शोल्डर, और इसको कंप्लीट किया है गोइंग अबव 1998. सो 1998 एक्चुअली इज वेरी क्लोज टू 2000, विच इज अ वेरी क्रूशियल इंटीग्रल नंबर। तो आपको वेट करना है, मेरे हिसाब से आपको बाय करने के लिए वेट करना पड़ेगा कम से कम 2225 के ऊपर अगर आप इसको लेते हैं, which is स्कॉट्स, तो आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट मेरे ख्याल से तो इस महीने ही मिल जाना चाहिए। तो स्कॉट्स मेरा पहला स्टॉक था, और दूसरा स्टॉक से मेरा बाटा इंडिया। सो बाटा इंडिया किस लिए? क्योंकि ये भी एक बॉटम आउट स्टॉक है। बॉटम आउट स्टॉक है, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, और कल इसमें जबरदस्त बाइंग आई है। जो इसने क्लोजिंग दी है वो अपने ओपन इक्वल टू, कल ओपन इक्वल टू लो था, लगातार इसमें बाइंग आई है, और जो ये जो क्लोजिंग है दैट्स आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। तो ये भी एक इंटीग्रल नंबर है, अबाउट 1410 के ऊपर अगर आप इसमें 1415 के ऊपर आप बाय करेंगे तो आपको 1440, 1460, 1480 तक के टारगेट इसमें, इनफैक्ट यहाँ तक के टारगेट आपको 1450 तक के टारगेट बाटा इंडिया में आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और लास्ट स्टॉक जो मैं देने चाहती हूँ वो है इंटेलेक्ट। तो इसमें ना इंटेलेक्ट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस बहुत एक्टिव नहीं है, तो आपको ऑप्शंस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे, बट आप डेफिनेटली इसके कैश में इसमें बाइंग कर सकते हैं, या आप फ्यूचर्स का लॉट देख सकते हैं। तो बट 442 के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री के लिए, और आपका टारगेट रहेगा 442 के ऊपर 450, 460 एंड 465 तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो 3 स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने पूरी एनालिसिस की है। एक मैंने आपको साउथ इंडियन बैंक दिया है, उसके बाद मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए हैं, बाटा इंडिया, इंटेलेक्ट, एंड एक और स्टॉक मैंने आपको दिया है Escorts. These are the 3 stocks where I have done full analysis, like I have checked the data, every single point I've checked in the data. They look very promising. The price action is interesting, and जहां तक बात आती है कि डेवलपमेंट कैसा है, टेक्निकली डेवलपमेंट कैसा है, दैट्स आल्सो साउंडिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। सो फ्रॉम माय साइड बैंक निफ्टी लुक्स पॉजिटिव टू मी। एज आई टोल्ड यू कि बैंक निफ्टी अगर अपने आज के हाई को क्रॉस कर जाती है तो डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा, एटलीस्ट 130 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट जरूर मिलेगा, बट आई वुड बी वेरी केयरफुल ऑन 19 को मैं बहुत केयरफुल रहूंगी। हो सकता है बैंक निफ्टी उस दिन अपना एक टॉप बना दे, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगी, क्योंकि एक तो वेडनेसडे होगा, एक्सपायरी से एक दिन पहले होगा। So I'm going to be very, very careful on 19, but at the same time, I don't want to miss out the movement on 18th. So all the best, stay tuned. And in case you are making money along with StockPro, or you're learning something, please give a thumbs up, share, like, share, and subscribe the channel. And do join me for the live trading every day from 10 to 11.
Bye bye. Take care. See you in the live market.